Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 81 as I'm going to continue with lesson 9, Unusual Friends. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 81 as I am going to continue with the exercises of lesson 9, Unusual Friends. Students, in my last video, I had completed the frame sentences of lesson 9, Unusual Friends. And today I am going to start with the language structure exercise based on compound words given on page number 81. Students, what are compound words? Students, when two or more words join together to form a new word, that word is known as a compound word. Fine? बेटा, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ज्वाइन होते हैं तो वो नए वर्ड्स बनाते हैं और उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. Now, let's look at the following words. First of all, fine. I'll give a small example. Beta, black plus board मिला के कौन सा वर्ड बना? ब्लैक बोर्ड. तो दो वर्ड्स को मिला के कौन सा वर्ड मिला बेटा? ब्लैक बोर्ड. तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड. फाइन. नाउ जब we join two or more than two words to form a new word, that word is known as compound word. Fine. Now look at the following words, children. Box, hyphen, type. The next word is battlefield, and the next word is post office. Now, these three are compound words. Now, what is the difference? Beta, the first word, that is box type, it is joined with a hyphen. Hyphen किसको बोलते हैं बेटा? जो डैश आता है उसको हम hyphen बोलते हैं. So, box type, two words which are joined with a hyphen in the center, ये भी compound word है. Box और type को मिला के बना है. The second word is battlefield, and battlefield, battle and field दो words को join करके बना है. But what is the difference? इसमें बीच में hyphen है, ये एक साथ join करके single word बना है. Then the third compound word is post office. ये post और office बेटा दो words को लेके बना है, but दोनों के बीच में space है. So all these three are compound words which are formed by joining two words. First वाले में जो word है box type, this compound word is joined with a hyphen. The second compound word is battlefield, जो battle और field को मिला के बना है, but ये एक single word है. There is no space in between, है ना? Box plus type को मिला के क्या बना है? Box type, जिसमें एक hyphen है. Battlefield word जो है किसको ज्वाइन करके बना है? बैटल प्लस फील्ड. और पोस्ट ऑफिस किसको ज्वाइन करके बना है? पोस्ट प्लस ऑफिस. फाइन. ये तीनों ही बेटा कंपाउंड वर्ड्स हैं, बट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बीच में हाइफन होता है, कुछ कंपाउंड वर्ड्स एक ही वर्ड में दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सिंगल वर्ड बनता है, और कुछ कंपाउंड वर्ड्स में दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है.
So these are three different kinds of compound words. Now, as we know that some compound words have got a hyphen. कुछ बेटा कंपाउंड वर्ड के बीच में हाइफन होता है. हाइफन किसको बोलते हैं? जो बीच में डैश होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइफन. देन सम आर जॉइन टुगेदर. कुछ कंपाउंड वर्ड्स ज्वाइन करके एक साथ लिखे जाते हैं. एंड देन some compound words have got space in between them. But all these three are compound words. Why they are compound words? Because ये तीनों words दो words को join करके बने हैं. Fine. Now let's learn about some more compound words. Now first हम पढ़ेंगे compound words. I'll write short form compound words with hyphen. जो बेटा hyphen मतलब जिनके बीच में डैश लगा हुआ है. Fine. Then compound words as a single word and compound words as two words. अब बेटा हम थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट कंपाउंड वर्ड्स विच हैव गॉट हाइफन इन बिटवीन, कंपाउंड वर्ड्स विच आर रिटन एज सिंगल वर्ड्स एंड कंपाउंड वर्ड्स विच हैव गॉट स्पेस बिटवीन देम. नाउ अब बेटा द फर्स्ट वन इज द वन विथ हाइफन, लॉन्ग हाइफन टर्म. LONG, लॉन्ग हाइफन टर्म. ये लॉन्ग और टर्म को ऐड करके मिला है और इसके बीच में हाइफन है. लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म जो वर्ड है किन दो वर्ड्स को मिला के बना है? लॉन्ग प्लस टर्म. ये लॉन्ग टर्म बेटा किसको मिला के बना है? लॉन्ग प्लस टर्म. इसको मिला के जो फर्स्ट कंपाउंड वर्ड बना है दैट इज लॉन्ग टर्म. दिस कंपाउंड वर्ड हैज गॉट अ हाइफन in between. Fine. Then हमारा जो नेक्स्ट सिंगल कंपाउंड वर्ड है दैट इज डोर नॉब. डोर का जो नॉब होता है जिससे ओपन करते हैं, ये किसको मिला के बना है? डोर प्लस नॉब. दो वर्ड्स को बना के एक सिंगल वर्ड बना है डोर नॉब. फाइन. ये किस दो वर्ड्स को ऐड करके बना है बेटा? डोर एंड नॉब. Then another example is living room. Living space and room. ये compound word है, किसको मिला के बना है? living plus room. living room. Fine. So I hope you can see the difference. long plus term को मिला के कौन सा कंपाउंड वर्ड बना है? लॉन्ग टर्म विच इज गॉट हाइफन इन द सेंटर. देन डोर प्लस नॉब को बना के मिला है डोर नॉब. ये एक सिंगल कंपाउंड वर्ड है. देन लिविंग प्लस रूम को बना के लिविंग एंड लिविंग रूम बना है विच इज गॉट स्पेस इन बिटवीन. नाउ द नेक्स्ट वन. These are examples which you must know. The next is editor hyphen in chief. Editor in chief. ये जो कंपाउंड वर्ड है बेटा कितने वर्ड्स को मिला के बना है? 3 वर्ड्स को. कौन कौन सा? एडिटर प्लस in plus chief, and there are 2 hyphens
in this compound word, one after editor and one after in, है ना. तो editor in chief ये compound word कितने words को मिला के बना है बेटा? 3 words. Editor plus in plus chief. Fine. Then next word is notebook. Notebook which you write. और एडिटर इन चीफ बेटा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स इनके होते हैं. फाइन. जो चीफ है, जो सारी एडिटिंग देखते हैं, जो भी है. और नोटबुक किसको मिला के बना है बेटा? नोट प्लस बुक को ज्वाइन करके कौन सा वर्ड बना है? नोटबुक. And there is no space between notebook. This is also a compound word and it is formed by adding the two words note plus book. Then the third compound word is coffee mug. और बेटा कॉफी मग किन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है? कॉफी प्लस मग. That big size mug in which your parents drink coffee. That is coffee mug. तो ये कॉफी मग किसको मिला के बना है? कॉफी प्लस मग. फाइन. सो फर्स्ट कंपाउंड वर्ड था आपका एडिटर इन चीफ विच इज गॉट 2 hyphens एंड ये 3 वर्ड्स को बना के बना है. एडिटर, इन एंड चीफ ज्वाइन करके. देन द सेकेंड सिंगल कंपाउंड वर्ड इज नोटबुक और ये जो है कितने वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है बेटा? नोट प्लस बुक. देन कॉफी मग, इन दोनों के बीच में स्पेस है और ये किन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है? कॉफी प्लस मग. नाउ the next word is merry go round. मैरी गो राउंड वो बड़ा वाला झूला जिसमें आप बैठ के चक्कर लगाते, जो नीचे से आपको ऊपर लेके जाता है. द मोमेंट इट गोज अप यू फील दैट टिंकलिंग सेंस इन योर स्टमक. नाउ द दिवाली मेला इज कमिंग एंड दोज ऑफ you who live in 39 GTC they know कि मैरी गो राउंड दशहरा ग्राउंड में लगता है and you all enjoy to take rides in मैरी गो राउंड. तो मैरी गो राउंड बेटा जो वर्ड है ये कितने वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है? मैरी प्लस गो प्लस राउंड and there are 2 hyphens in the word merry go round. One between merry and go, the other between merry and round. तो ये 3 words को join करके compound word बना है merry go round. Then the next compound word is waistcoat. बेटा waistcoat जो एक कोट के अंदर पहना जाता है उसको waistcoat बोलते हैं. एंड ये किन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है? वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, प्लस कोट. एंड वेस्ट कोट इज रिटर्न एज अ सिंगल वर्ड. और ये किन दो वर्ड्स को बेटा ज्वाइन करके बना है? वेस्टर्न कोट. और ये सिंगल लिखा जाता है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज योर फेवरेट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू लव टू ईट आइसक्रीम. और आइसक्रीम भी एक कंपाउंड वर्ड है और किन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है बेटा? आइस प्लस क्रीम. आइसक्रीम. सो अगेन यू कैन सी मैरी गो राउंड जो है इट इज गॉट 2 hyphen in between, one between merry and go, the other between go and round. and ये जो वर्ड है कितने वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है बेटा? 3 words, merry plus go plus round. Then the next word is waistcoat. This compound word is written as a single word and it is made by joining 2 words, that is waist plus coat. Then the third word is ice cream. And ice cream has got space between the 2 words and this is formed by adding ice plus cream. Fine. So now the next set of compound words are
daughter-in-law. Daughter-in-law. There are two hyphens in the word daughter-in-law and सबको पता है ना daughter-in-law किसको बोलते हैं, जो घर की बहू होती है उसको daughter-in-law बोलते हैं, है ना. So आपके ग्रैंड पेरेंट्स की daughter-in-law कौन है? आपकी मदर. आपकी मदर, आपके जो दादा दादी हैं उनकी क्या है बेटा? daughter-in-law. और daughter-in-law कितने वर्ड्स को कंबाइन करके बना है बेटा? daughter प्लस इन प्लस लॉ. क्या वर्ड बन गया बेटा? डॉटर इन लॉ. एंड दिस इज कॉल्ड टू हाइफन्स इन बिटवीन. दैट शोज कि बेटा कितने भी हाइफन हो बट ये एक वर्ड है, कंपाउंड वर्ड, जो जिसके बीच में क्या है बेटा? दो हाइफन. देन द नेक्स्ट वर्ड इज fireman. fireman और fireman बेटा कितने वर्ड्स को कंबाइन करके बना है? fire plus man. and fireman is written as a single word. और ये fire plus man को कंबाइन करके बना है. then the next word is paperwork. and paperwork is again a compound word but it has got space in between both the words. और ये किन दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है बेटा? पेपर प्लस वर्क. पेपर वर्क. फाइन. सो डॉटर इन लॉ, इट हैज गॉट two hyphens in between but it is a compound word and it is made by combining three words, that is daughter plus in plus law. Then the next compound word is fireman and this is written as a single word and it is formed by combining the two words fire plus man. Then the next compound word is paperwork and it has got space in between it and it is formed by adding the two words paper and work. Now, the next compound words are beta, well, hyphen, being. Well-being, when you think good for another person, that is known as well-being, and well-being has got a hyphen in between both the words and this word is formed by adding the two words well plus being. When you think good about somebody else, that is known as well-being. Well means acha and being is that you think good about some other person, that is known. Being means any living being. जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो that is known as well-being. And this is formed by combining two words well plus being. Then the next word is sunflower. All of you know sunflower, and sunflower is a compound word which is written as a single word and it is formed by joining two words, that is sun plus flower. Sun plus flower is equal to sunflower. Then the next word is vice president. This is a post and beta vice president में vice V is always capital and president's P is always capital, and this is formed by adding the two words vice plus president. Fine. So these two words join together to form the compound word vice president, and these two words have got space in between them. So well plus being, well-being, and well-being has got, this is a compound word which has got a hyphen in between both the words. Then sunflower, it is formed by joining the two words, that is sun plus flower, and sunflower is written as a combined word, single combined word.
Then vice president, again compound word, and vice president has got space in between and it is formed by joining vice plus president. Then the next compound word is re-elect. फिर से elect करके re means again, and फिर से elect करके कुछ भी करने को re-elect करके बोलते हैं. Re has got re-elect and this is formed by adding two words, that is re plus elect, and this is a compound word which has got a hyphen in between both the words. Now the next word is healthcare. HEALTHCARE, health care, and this word, and beta, the word healthcare is formed by adding two words, that is health plus care, healthcare. So healthcare is the compound word which is formed by combining two words, that is health plus care. Then the next compound word is report card. है ना, सबको अपने रिपोर्ट कार्ड का बहुत पेट रहता है, which is your result, है ना. एंड रिपोर्ट कार्ड के बीच में स्पेस आती है. ये एक ही वर्ड है, बट ये जिन वर्ड्स के बीच में स्पेस आती है आप ऐसा मत सोचो कि वो अलग वर्ड है, बट रिपोर्ट कार्ड तो हम एक ही वर्ड है, एंड इनके बीच में जो वर्ड्स जिनके बीच में स्पेस आती है बट वो कंपाउंड वर्ड है, उनको कभी भी हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है. रिपोर्ट कार्ड बस यू लीव स्पेस इन बिटवीन देम. रिपोर्ट प्लस कार्ड. आइसक्रीम, है ना, रिपोर्ट कार्ड, कॉफी मग, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ये सब एक ही वर्ड है, बट इनके बीच में दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है. दे आर कंपाउंड वर्ड, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. रिपोर्ट कार्ड आएगा तो आप सोचोगे कि ये दो अलग वर्ड्स है, नहीं, ये एक ही कंपाउंड वर्ड है, बट इनके बीच में स्पेस है. सो यू शुड नो द डिफरेंस बेटा, कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बीच में हाइफन आता है फिर भी वो एक काउंट होते हैं, कुछ कंपाउंड वर्ड साथ में लिखे जाते हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं. बट स्पेशली कंफ्यूजन कहाँ है, जहां कंपाउंड वर्ड्स के बीच में स्पेस आती है. रिपोर्ट कार्ड, आइसक्रीम, आइसक्रीम दो अलग अलग वर्ड्स लिखे जाते हैं, बट आइसक्रीम एक ही चीज को बोलते हैं. फाइन, सो दिस इज अ कंपाउंड वर्ड. रिपोर्ट कार्ड में दो वर्ड्स हैं विच हैव गॉट स्पेस बिटवीन, बट रिपोर्ट कार्ड तो एक ही होता है ना आपका जो रिजल्ट आता है. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. These are different kinds of compound words. मैं इसीलिए समझा रही हूँ so that the concept get clear, कि कुछ के बीच में हाइफन आता है, कुछ सिंगल वर्ड के जैसे लिखे जाते हैं, और कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं कि जिनके बीच में स्पेस हो. फाइन. नाउ re-elect किससे बना है, re plus elect, and it has got hyphen in between. Healthcare single word लिखा जाता है, made by combining two words, that is health plus care. Then report card, दोनों के बीच में space है, and it is written by combining two words, that is report and card. So now the next set of words, that is year end. year hyphen end, और ये बेटा किन दो वर्ड्स को मिला के बना है, year plus end. जब साल खत्म होने वाला रहता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं, year end. लाइक नवंबर आ रहा है, अब year end स्टार्ट हो गया, नवंबर दिसंबर shows that the year is going to end soon. So year hyphen end is made by combining two words, year plus end. Then the next compound word is weekday. weekday किन दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है बेटा, week plus day. week plus day is equal to weekday. जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, these are all known as weekday. और ये किन दो
वर्ड्स को कंबाइन करके मिला है वीक प्लस डे। देन द नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड इज हेल्प डेस्क। अपने ऑफिस में, आपके स्कूल ऑफिस में भी हेल्प डेस्क है ना। द मोमेंट यू एंटर फ्रॉम द गेट अ मैम सिट्स इन द ऑफिस टू असिस्ट यू, है ना। शी गाइड्स यू हाउ एंड वेयर द थिंग्स हैव टू बी डन। तो हेल्प डेस्क पे आपको गाइडेंस मिलती है। सो आपने देखा है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में हेल्प डेस्क होता है ना। रिसोर्ट्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, वे आपको कुछ भी अगर है कि कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ पे कैसे क्या आपको जाना है, तो हेल्प डेस्क आपको असिस्ट करता है ना। हमारे स्कूल में भी एक मैम बैठती है हेल्प डेस्क में। शी गाइड्स यू कहाँ पे फीस जमा होती है, प्रिंसिपल मैम कहाँ मिलेंगी, टीचर्स का टाइम क्या है मिलने का, ऑल दीज थिंग्स, है ना। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी, वो इंक्वायरी आपकी कहाँ पे आपको उसके आंसर्स मिलेंगे एट दी हेल्प डेस्क। और हेल्प डेस्क बेटा इट्स अ कंपाउंड वर्ड एंड इट इज मेड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, दैट इज हेल्प प्लस डेस्क, है ना। हेल्प मतलब आपको असिस्ट करने के लिए बैठे हैं और एक पर्टिकुलर जगह है वहां वो बैठे हैं जहां वो आपकी मदद कर सकते हैं, सो दैट कि आप परेशान न हो। फाइन। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स कि अभी कंपाउंड वर्ड्स कुछ होते हैं जिनमें हाइफन होता है, बट वो दे आर फॉर्म बाय एडिंग टू और मोर देन टू वर्ड्स, बट स्टिल हाइफन होने के बाद भी वो कंपाउंड वर्ड्स ही होते हैं। एंड कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं दे आर रिटन एज सिंगल बाय जॉइनिंग बोथ द वर्ड्स, एंड सम कंपाउंड वर्ड्स हैव गॉट स्पेस इन बिटवीन। वो दो वर्ड्स को अलग अलग लिखा जाता है, बट वो उनका मीनिंग एक वर्ड का होता है। सो प्लीज डू नॉट गेट स्पेशली इन द कंपाउंड वर्ड्स विच हैव गॉट स्पेस इन बिटवीन। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने इतने सारे कंपाउंड वर्ड्स पढ़ लिए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज ए, वी नीड टू, अभी जो हमने जितने कंपाउंड वर्ड्स पढ़े हैं, वी हैव टू यूज दोज वर्ड्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए हैं और हमको उन सेंटेंसेस में अप्रोप्रिएट कंपाउंड वर्ड्स को चूज करके we need to fill in the blanks, that is complete the sentences। और जितने भी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में कंपाउंड वर्ड्स समझाए हैं, उन्हीं में से हमको अप्रोप्रिएट कंपाउंड वर्ड यूज करके we need to complete the sentence। So our exercise A is complete the following sentences. Complete the following sentences using compound words from the given table। अब ऊपर जितने भी बेटा वर्ड्स दिए, उन्हीं टेबल में से हमको अप्रोप्रिएट कंपाउंड वर्ड्स चूज करके we need to complete the sentence। Now the first one, Mr. Daniel has been dash as the chairman of the company। Now, Mr. Daniel has been dash as the chairman of the company। Now बेटा, अब हमको ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। एंड दी वर्ड्स आर लॉन्ग टर्म, एडिटर इन चीफ, मैरी गो राउंड, डॉटर इन लॉ, वेल बीइंग,
re-elect, year-end, doorknob, notebook, waistcoat, fireman, sunflower, healthcare, weekday, living room, coffee mug, ice cream, paperwork, vice president, report card, हेल्प डेस्क। अब इनमें से हमको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके अब फिल करना है। सो मिस्टर डैनियल हैज बीन डैश एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। अब बेटा इसमें जो करेक्ट वर्ड आएगा, मिस्टर डैनियल हैज बीन डैश एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, हैज बीन elected। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा बेटा, मिस्टर डैनियल हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मतलब वो फिर से री-इलेक्ट हुए, अगेन ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और हमने कौन सा वर्ड को बेटा, कौन से कंपाउंड वर्ड को यूज किया, री-इलेक्ट, है ना। री-इलेक्ट में हमने ईडी ऐड किया। सो मिस्टर डैनियल हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। Fine students, so that's all for today. Hope you all have understood the 3 different kind of compound words. That is, some compound words have got hyphen between them, some are written as single words and some have got space in between them. But they all are compound words as they are formed by combining 2 or more words. And students, I'll be continuing this exercise in my next video. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.